Hello friends, welcome to iXambi. Today we are going to discuss the important PIB news in the form of MCQs. Okay, and we will be discussing this news from 13th to 20th of September. Okay, from today onwards we will be dealing with PIB news in the form of MCQs. It becomes easy also, and its retention power is more. Okay, so that's why we are shifting to the MCQs, है ना? And NABARD mains is around the corner. Recently NABARD pre has happened, and NABARD is going to declare the result maybe by Monday or Tuesday. ठीक है, तो next week, maybe next month, in the last, maybe in third or fourth week of October, we are expecting NABARD mains. ठीक है, so all the questions in this videos are important from the point of view RBI mains and NABARD mains also. RBI, uh, uh, RBI means which is going to be in next year. ठीक है, so those people who are watching this video is equally relevant for NABARD mains and RBI. Okay, ठीक है. Moving further, let me tell you that we are still running our courses with flat 40% off. So if you want to ensure your selection, then you can enroll to these courses. If you want to appear for next year's NABARD grade A, and if you want to prepare in a organized way, you can enroll to our NABARD courses also. We are offering flat 40% off on NABARD courses also. ठीक है. Now here is the first question from oilseed production, right? In prelims also we had a question on oilseed. ठीक है, they have asked oilseed production of these years from advance estimate, है ना? So that's why this becomes important. And also let me tell you that we are the largest consumer and largest importer of oilseed. Largest consumer and largest importer. If we are requiring 100 kg of seeds, let's say, assume, then we are importing around 52 kg of oil seeds, and we are able to produce around 45 to 48 kg of oil seeds in our country. Okay, so you need to read this passage here, because in NABARD mains you will be getting passage based questions. Okay, so you have to read passage here, and from this passage you need to identify the scheme which has been recently launched in order to boost the oilseed production in our country. So the options are Sustainable Agriculture Mission, then National Mission on Oilseed, then palm oil, groundnut oil, and soybean oil. ठीक है? So the correct answer here is National Oilseed Mission, National Mission on Oilseed and Palm Oil. Okay, this has been recently launched in last month only, and it becomes important for NABARD mains. ठीक है? So this is the screenshot from PIB. The total outlay for this scheme is around 11,000 crore. You need to remember such minute facts, and this becomes important for our NABARD mains. Okay. Moving further, diverse agroecological condition of India is favorable to produce how many oilseeds in the country? This is again related to this passage. ठीक है? In NABARD mains also, you won't be getting any linkage with this passage. The answer, you won't get answer in this passage. This passage is given only for context. ठीक है? So you need to know the answers. Diverse agroecological conditions of India is favorable to produce how many oilseeds in the country? So the correct answer for this is 9. Total 9 seeds we are producing, 9 oil seeds we are producing in India. This is the screenshot from Agriculture Ministry. ठीक है? This is the from the official website of National Mission on Oilseed Production and Palm Oil Production. ठीक है? So here they have given that the diverse agroecological condition in the country are favorable for 9 annual oilseed crops. ठीक है? 7 are from edible oilseed and 2 are from non-edible oilseed. Castor and linseed. Remember, castor and linseed are non-edible oilseed. This you should remember. Moving further, the whole information is important. You may go through. Okay. So here they have given that oilseed cultivation is undertaken across country in about 27 million hectare. ठीक है? 27 million hectare.
mainly on marginal land, of which 72% is confined in rain-fed farming. So such minute details you need to remember. They can ask anything in NABARD. Okay, moving further. The second question, this is regarding the cluster development program. ठीक है, you need to read this passage और उसका आंसर करना है. Okay, so the who is implementing the horticulture cluster development program? Options are Ministry of Agriculture, National Horticulture Board and Ministry of Food Processing. ठीक है, the answer for this is National Horticulture Board. ठीक है, National Horticulture Board, the headquarter of NHB is in New Delhi. ठीक है, so the National Horticultural Board will be implementing this scheme, Horticultural Cluster Development Program. Basically, cluster is one particular region. ठीक है, this is your India. Okay, so this NHB will identify particular region where any particular crop, horticultural crop is very famous or is very dominating, है ना. Let's say for example हापुस, है ना, और अल्फांसो in Konkan, है ना. We have lychee in Bihar, है ना. We have spices in Kerala. ठीक है, so in this way they will identify such clusters and they will modify and they will help these clusters to make them enable for the agricultural export from such regions. Okay, moving further. So इसका आंसर तो इसमें पैसेज में ही दिया है. ठीक है, हाउ मेनी क्लस्टर्स आर प्लान्ड अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, इसका आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाएगा. ठीक है, हियर टू कवर ऑल द 53 क्लस्टर्स. इसका आंसर है आपका 53. ठीक है, 53 में से अभी 12 बन चुके हैं. तो अभी ये जो 53 क्लस्टर्स है, हु इज गोइंग टू एडमिनिस्टर दिस पर्टिकुलर क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी. Cluster Development Agency is going to administer these clusters. ठीक है, you need to know this Cluster Development Agency. If you go on the official website of this Cluster Development Program, you will get all these minute details there. Okay, moving further. Now this is the passage. You need to identify which of the following organization is being talked about here. ठीक है, you need to identify which from the following organization will replace this A. ठीक है, the correct answer is farmer producer organization. ठीक है, so government of India is putting lot of emphasis on creating farmer producer organization because it gives strength and it gives negotiating power to the small and marginal farmers. ठीक है, small and marginal farmers, so this becomes important. Next question is how many such organizations are planned to form. ठीक है, 10,000 FPOs are planned to form by 2024. ठीक है, this year also becomes important. So 10,000 FPOs are to be formed by 2024. ठीक है, moving further. Recently, Ministry of Agriculture has signed MOUs with 5 companies to promote digital agriculture. ठीक है, ये PIB में था लास्ट वीक. ठीक है, PIB से लिया हुआ है ये क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर. You need to identify the benefits of digital agriculture. Information on which crop to grow, suitable seed selection, improve farm production and remunerative marketing. You need to identify the answer. Answer is all of the above are correct. All these are benefits of digital farming. ठीक है, through digital farming by using app provided by the ICAR and Agriculture Ministry, you will be able to know which crop is suitable for your farm. ठीक है, as far as the agroclimatic region, as far as the rainfall pattern is concerned, which of the available cropping pattern is suitable for your
फार्मलैंड एंड फॉर योर रीजन, दैट यू विल नो, ठीक है। सो उसके हिसाब से फिर सीड सिलेक्शन कैसे करने का वो भी ऐप से, आप ऐप के जरिए आपको मिलेगा। अगर सीड सिलेक्शन सही है, क्रॉपिंग पैटर्न अगर सही है, तो आपका जो फार्म प्रोडक्शन है ना, जो यील्ड है वो अपने आप इंक्रीज होगा। और ये फिर अभी जो इनाम है, इनाम क्या है? इनाम एक डिजिटल इनिशिएटिव ही तो है। इनाम इज व्हाट? डिजिटल इनिशिएटिव। तो ये फिर किस पे हेल्प करता है? मार्केटिंग में हेल्प करता है ना। आपका जो डेफिसिट रीजन है उसको सरप्लस रीजन के साथ ये जोड़ देता है ना। तो ये चीज होती है इनाम में। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये भी सही हो जाता है। तो ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैपिटल रिसिट? ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं नाबार्ड में, ठीक है। आरबीआई में, आरबीआई के लिए भी ये रिलेवेंट है। इनफैक्ट आरबीआई के नाबार्ड में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था, ठीक है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कैपिटल रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। The answer for this is 1, 2 and 3. Loan from foreign government, RBI and disinvestment from LIC is comes under your capital receipt, ठीक है। और जो PSU से जो प्रॉफिट आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। किसी भी जो गवर्नमेंट का स्टेक स्टेक होते हैं अलग अलग जगह पे, कंपनीज में होने दो या फिर गवर्नमेंट कुछ लोन रेज करती है, तो उसमें आप ये बात ध्यान में रखो, अगर गवर्नमेंट का असेट और लाइबिलिटी इससे कम या ज्यादा होता है, असेट और लाइबिलिटीज अगर कम या ज्यादा होता है, तो उसको हम कैपिटल रिसिट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर अब अगर लोन रेज कर रहे हो फॉरेन गवर्नमेंट से, तो वो आपका लाइबिलिटी बन जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो एलआईसी से, तो उससे आपका जो असेट है वो कम हो जाएगा, है ना। एलआईसी क्या है? गवर्नमेंट का असेट है। तो उससे ये असेट कम हो जाएगा, तो इसलिए ये कहाँ पे आता है? आपके कैपिटल रिसिट। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर नाबार्ड, है ना। So you need to identify the correct statement about Swamitwa. It comes under Ministry of Rural Development. Then it was launched on National Panchayati Raj Day. It is being implemented in all states and union territories, and it facilitates monetization of properties and enabling bank loan. ठीक है, you need to identify the correct statement. The correct statement are 2 and 3 only. ठीक है, sorry, not 2 and 3. It should be 2 and 4. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सही नहीं है। ये अभी तो 9 स्टेट में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ठीक है। सो 3 बिकम्स रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, बट हियर शुड बी 2 and 4 ओनली। सो दिस ऑप्शन बिकम्स करेक्ट, ठीक है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नॉट रूरल डेवलपमेंट। इट शुड बी पंचायती राज, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे, विच इज योर 24th of April. Okay, 24th of April. So this you should remember. Moving further, Ministry of Agriculture has launched Digital Agriculture Mission for which of the following tenure? So what is the tenure of Digital Agriculture Mission? It is 21 to 25. For 5 years they have launched the Digital Agriculture Mission. They want to enable our farmers with digital tools which can improve their productivity, which can reduce their efforts, and which can improve their capacity for marketing of the agri produce, ठीक है। मूविंग फर्दर, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड शून्य कैंपेन। देखो नीति आयोग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एवरी एग्जाम, एवरी ईयर, आरबीआई में भी और नाबार्ड में भी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, नीति आयोग पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर द करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड विद नीति आयोग। सो शून्य शून्य कैंपेन इज रिलेटेड विथ योर जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। इट इज रिलेटेड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। So it becomes important for both the exams, RBI and NABARD, even for CB also. And these days IBPS is asking question on so many topics, है ना। In IBPS PO is coming in November, so there also this becomes important. You please mind this. In IBPS PO, SBI PO, this becomes important.
those who are watching it from the point of view of banking, it becomes important. ठीक है. Moving further, recently 45th meeting of GST Council has been held. Identify the correct statement about GST Council. So you need to identify the correct statement about GST Council. ठीक है. Finance Minister heads the council. Then it has replaced all the taxes in the country. 2080 distribution है power का, और there are 5 slabs. You need to identify the correct one. So the only first statement which is of finance minister who is heading the council is correct. Rest of the statements are incorrect. Ministry replaced all taxes in the country. अभी रिप्लेस करने का उनका मोटिव तो था, लेकिन हुआ नहीं है अभी, है ना. फ्यूल पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगी रहा है ना. एक्साइज ड्यूटी है अभी भी फ्यूल पे. तो सारे टैक्सेस रिप्लेस कर दिए ऐसे तो नहीं बोल सकते, है ना. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. देन वोटिंग पावर्स आर डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 20:80. ये 25:75 होना चाहिए. 25:75. ठीक है. तो ये वोटिंग राइट्स है. ठीक है. और वहां पे फिर 5 स्लैब्स नहीं है, देर आर 4 स्लैब्स ओनली. ठीक है. एक 5% है, 12% है, 18 है, और जो 28 है आई बिलीव. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जीएसटी इज इन न्यूज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म. वी कैन कॉल इट एज टैक्सेशन रिफॉर्म. ठीक है. इससे पूरा आर्किटेक्चर जो है हमारी कंट्री का चेंज हो गया, टैक्सेशन आर्किटेक्चर. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीलिंग विथ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. आंसर फॉर दिस इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में. ठीक है. तो ये यूएनसीसीटी जो है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. ठीक है. ये डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है. यूएनएफसीसी जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. ठीक है. देन किगाली अग्रीमेंट जो है ये अमेंडमेंट है किसका? प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का. ठीक है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, और दिस इज रिलेटेड विथ रिड्यूसिंग HFCs. ठीक है. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. ये बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है. बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और ये हमको किससे कौन से अग्रीमेंट के थ्रू रिड्यूस करना है? थ्रू किगाली अग्रीमेंट. ओके. क्योटो प्रोटोकॉल इज अगेन रिलेटेड विथ योर रिड्यूसिंग एमिशंस, है ना. एमिशन से रिलेटेड है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो गया. ठीक है. मूविंग फर्दर, India scored 46th rank in Global Innovation Index launched by WIPO, World Intellectual Property Organization. ठीक है. Identify the most innovative state union territory in India as per नीति आयोग. ठीक है. नीति आयोग इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स. तो भारत का सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इज योर कर्नाटका. ठीक है. सो मूविंग फर्दर, आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. ये रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है. सो व्हाट आर इट्स पैरामीटर दैट यू नीड टू नो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इस बार का आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आरबीआई ग्रेड बी में दिखेगा ही दिखेगा आपको, आने वाले आईबीपीएस में भी आ सकता है. ठीक है. सो द पैरामीटर्स आर यूसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी. ठीक है. ये इसका वेटेज है 45%, एक्सेस का वेटेज है 35%, क्वालिटी का वेटेज है 20%. ठीक है. तो इन 3 पैरामीटर्स के सहारे, इन 3 पैरामीटर को यूज करके फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स डेवलप किया है आरबीआई ने. ओके. मूविंग फर्दर, वंदन स्कीम इज इंश्योरिंग फेयर प्राइजेस फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स. आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर वंदन स्कीम. So the important implementing agency for Vandan scheme is ट्राइफेड. ठीक है. ट्राइफेड इसका सही आंसर है. नाफेड नहीं है, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी नहीं है. हालांकि ट्राइफेड जो है इट कम्स अंडर ट्राइबल मिनिस्ट्री ओनली, बट ट्राइफेड इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री एज फार एज ट्राइबल प्रोडक्ट मार्केटिंग इज कंसर्न. ठीक है. तो ये जो ट्राइफेड, ये जो स्कीम है वो है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड, है ना. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए के लिए एमएसपी इंश्योर करना है. सो दिस कैंपेन इज एमएसपी फॉर एमएफपी. ओके. दिस बिकम्स योर कैंपेन. ठीक है.
तो ये आपका इंश्योर कर रहा है ट्राइफेड, यू नीड टू रिमेंबर दिस। पीसफुल मिशन इज डिफेंस एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको नाबार्ड मेंस में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। ये रिलेवेंट है आपके आरबीआई के लिए, ठीक है, आरबीआई एंड कमिंग आईबीपीएस, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका सही आंसर है आपका एससीओ, ठीक है। एससीओ ने अभी ये पीसफुल मिशन करके डिफेंस एक्सरसाइज अभी लॉन्च की थी, तो ये एससीओ का एससीओ से रिलेटेड है ये पीसफुल मिशन। आई होप यू हैव टेकन नोट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे, है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर लास्ट सेशन में दिया था। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है। पहला क्या है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये लिख दो पहला पार्ट, तो इस पे बात करनी पड़ेगी आपको। स्कोप, फ्यूचर, प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। देन हाउ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन बी बेनिफिटेड, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस आंसर को आप दो टुकड़ों में बांट दो और दो टुकड़ों में सेपरेट इसके लिए आर्गुमेंट दो। तो स्कोप में क्या है, स्कोप मान ले तो ये इससे क्या क्या हो सकता है, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम एनकरेज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है। तो उससे एक तो क्या होगा कि फार्म एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है, इसको फार्म डिस्ट्रेस हम जो बोलते हैं, वो कम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ। देन थर्ड इज योर देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। फोर्थ आ गया आपका रीजनल डेवलपमेंट, है ना। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल दो, ठीक है, और वो अगर ग्रो करती है, उसको प्रॉपर इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिबेट दिए, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई चेन वहाँ पे इंश्योर की, उनको लोन्स दिए, तो वो उस पूरे एरिया में डेवलपमेंट होगा। वहाँ की जो पूरे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ, वहाँ पे रोजगार होगा, तो लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना। तो ये रीजनल डेवलपमेंट भी इसमें आएगा। अब ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे ये मैंने आंकड़े दिए हैं आपको, ठीक है। इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है आज की डेट में, 11%। और पूरे अगर फूड इंडस्ट्री में इसका अगर शेयर देखा जाए तो वो है 32%। ओके, ये इंडस्ट्री ग्रो होगी बाय टू द ट्यून ऑफ 530 बिलियन बाय 2025। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड इट हैज पोटेंशियल टू क्रिएट अराउंड 9 मिलियन जॉब्स, ठीक है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स आपके आंसर में आने चाहिए। इफ एनीबडी हैज रिटन द आंसर, यू कैन सेंड द आंसर्स एट hello@iexambi.com, ठीक है। यू कैन मेंशन माय नेम इन योर मेल, ठीक है, माय नेम इज रवि मेश्राम। You can mention my name in that mail and I'll get back to you with the after evaluation, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इन पे क्या बेनिफिट होगा, तो वही जो हमने डिस्कस किया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उनके घर के आजू बाजू में जॉब मिल जाएगा, रिलीफ फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है उस पर अभी बात कर रहे हैं अपन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो निकल जाता है ना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि आप प्री डिसाइडेड प्राइस पे अपना आपका जो क्रॉप यील्ड है वो बेच दोगे कंपनी को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, है ना। और वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपसे वो क्रॉप ले भी लेगा। तो अगर बम्पर प्रोडक्शन होता है उस साल में, ठीक है, तो प्राइजेस कम होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो वो जो है वो जो सिनारियो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, तो उससे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट होगा, है ना। फिर इनोवेट इम्प्रूव लाइफस्टाइल, अगर इनकम बढ़ेगा, है ना, डबलिंग फार्मर इनकम वाला भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट डाल सकते हो। इनकम अगर बढ़ेगा तो फार्मर्स की लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी, है ना, हेल्थ इश्यू में वो खर्च कर पाएंगे, अपने खाने पीने डाइटरी हैबिट्स पे वो खर्च कर पाएंगे, बच्चों की एजुकेशन में वो खर्च कर पाएंगे, है ना, क्लोथिंग पे खर्च कर पाएंगे, हाउसिंग पे खर्च कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, ठीक है। आंसर इसी से बनता है, छोटे छोटे पॉइंट से आपके आर्गुमेंट से एक आंसर बनता है, ठीक है। उसमें ये डाटा भी होगा, उसमें बेनिफिट्स भी होंगे,
आपके आर्गुमेंट्स होंगे अलग अलग मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल डायमेंशंस पे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन लाइट ऑफ आइडिया ऑफ न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, डिस्कस द सालिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अभी आत्मनिर्भर भारत अगर हमको करना है या न्यू इंडिया अगर हमको इंश्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, लोग अवेयर होने चाहिए, लोग सोशली अवेयर होनी चाहिए, लोग फाइनेंशियली अवेयर होनी चाहिए, लोग इकोलॉजिकली अवेयर होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके तो अच्छे सिटीजन बनेंगे, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। अदरवाइज हम टाइगर पे खर्च कर रहे हैं, टाइगर पे हजारों हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका पोचिंग होता है, लोग उसको मार देते हैं, है ना। तो टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम इकोलॉजिकली अवेयर हो जाए तो हम ऐसी जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्पेसीज है उनका इंपॉर्टेंस हम समझ पाएंगे, है ना। जैसे गंगा, गंगा क्लीनिंग के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन गंगा क्लीन हमको, मतलब वो साफ करने के लिए हमको खर्चा करने के बजाय वी शुड कीप इट क्लीन। ओके, वी शुड नॉट थ्रो द रिलीजियस वेस्ट इनटू गंगा। ठीक है, वी शुड नॉट थ्रो डेड बॉडीज इनटू गंगा। ठीक है, तो वो पैसा, दैट मनी विच वी विल सेव फ्रॉम गंगा क्लीनिंग, दैट वी कैन स्पेंड ऑन आवर एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये न्यू इंडिया के आपके फीचर्स है, एंड यू नीड टू कनेक्ट दिस फीचर्स विद द ब्रॉड फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर क्या है? पहला तो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन उन्होंने लाया है। 10 डे इन 1 ईयर देयर विल बी 10 डेज विच व्हेन यू डोंट नीड टू टेक बैग्स टू योर स्कूल। ठीक है, बैगलेस डे जिसको हम बोलते हैं। तो इस 10 दिनों में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लम्बिंग का, फिटिंग का, वेल्डिंग का, ऐसे स्किल्स आपको लेने पड़ेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर उससे आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, है ना। अभी क्या होता है, कोई आर्ट अगर पढ़ रहा है तो उसका मैथमेटिक के साथ कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, कोई साइंस अगर पढ़ रहा है तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं, है ना। तो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी की वजह से क्या होगा, सो इफ एनी आर्ट स्टूडेंट, इफ ही वांट्स टू स्टडी मैथ, ही कैन स्टडी मैथ। if science student want to study history, he can opt for that subject। ठीक है, so this will create one productive youth, है ना, प्रोडक्टिव सिटी, वी विल बी एबल टू क्रिएट प्रोडक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, इससे फिर जेंडर इक्वालिटी की बात आती है ना। मेनी ऑफ अवर गर्ल्स आर नॉट टेकिंग एजुकेशन ड्यू टू मेनी सोशल एविल्स एंड प्रिजुडिसेस। ठीक है, so these issues we need to tackle through national education policy। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपको एक एक फीचर उठाना है और उसको इन सब चीजों से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है उन सब चीजों को आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स को इन चीजों के साथ कनेक्ट करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इस आंसर की डिमांड है। ठीक है, तो I hope all of you are clear about this, and if you are writing answers, you can send these answers to me at the rate hello @iexambi.com। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।